हर साल एक नई कहानी शुरू होती है और आज उस कहानी का पहला पेज 25th बैच। सब इंजीनियर बनने आए हैं पर सबके सपने अलग हैं। असल में मेरा गोल सिविल सर्विस में है। देखिए सर, हमें 4 साल में यहाँ पर एक स्टार्टअप करना है। I want my package to be 50 lakhs per annum. I want to be in Air Force. If I have the another option, I would like to go in defense. किसी ने पहली बार कैमरा फेस किया तो किसी ने अपना फ्यूचर सोच के आंसर किया। मुझे इंजीनियरिंग में अपने आप को थोड़ा सा आगे देखना था और मुझे थोड़ा सा क्रिएटिव आइडिया में भी इंटरेस्ट है, तो मैं सोची थी कि इंजीनियरिंग इज अ राइट ऑप्शन फॉर मी। I want to be in Air Force. If I have the another option, I would like to go in defense. कुछ मोमेंट सीरियस थे तो कुछ फनी। मेरा रूममेट बेसिकली बहुत हरामी है। वो ये क्या करता है ना कि वो ओमेगल पे लड़कों से लड़कियों की आवाज़ में बात करता है। किरिस का गाना सुनेगा तू? किरिस का गाना सुनेगा? दिल ना दिया। और एक रैपर ने तो पूरे सीनियर का दिल ही जीत लिया। बाप के पैसे नहीं खाता तो कैसा सवाल है, मैं कैसे कमाता, मैं लाशें भी चाहता, ये कहने में आता पुलवदीना मसाबा लाइक दैम, लेट्स सेट गो, ये ग्रीन लाइट गैंग, करो मैं बड़े। ये सिर्फ जूनियर इंट्रो नहीं। My name is Alok Kumar. Myself Aman Kumar. My name is Piyush Kumar Priyadarshi. ये इंजीनियर्स की शुरुआत है। 25th बैच की कहानी अब शुरू होती है। Myself Aman Kumar. I am from Belagans, Gayarji, Bihar, and currently I am pursuing BTech from Tripoli branch. My name is Priyanjali Kumari. I am from Madhubani district and I am from Tripoli branch. My name is Piyush Kumar Priyadarshi. My name is Rahul Kumar and I am from Buxar. My branch is Tripoli. मेरा नाम केशव कुमार है, मैं बेगूसराय से हूँ और मेरा ब्रांच ट्रिपली है। My name is Sweety Kumari. I am from Nalanda district and my branch Tripoli. My name is Preeti and I am from Kamur and my branch is Tripoli. My name is Govind Singh. I am from Muzaffarpur. My branch is Tripoli. My name is Manish Kumar. I am from Samastipur district and my branch is Tripoli. I am Ankush from Vaisali and my branch is Tripoli. Myself Ojaswila. I am from Bhagalpur. My branch is Tripoli. Myself Ajay Kumar. Myself Arpit Kumar. I am from Muzaffarpur. I am from Tripoli branch. Hello guys, my name is Devanshu and I am from Jahanabad and my branch is mechanical engineering. My name is Sahid. My name is Sakshi Thakur. I am from Muzaffarpur and my branch is FTS. My name is Priya. My name is Deepak Kumar. I am from Jammu district, Bihar. My branch is mechanical engineering. I am Sudhanshu. I am from Madhubani district and my branch is mechanical. My name is Gaurav Kumar from Gopalganj district and my branch name is mechanical engineering. I'm Abdullah Suleiman and I'm from Patna and my branch is fire tech and safety. My name is Nazish Khan and I am from Patna. My branch name is mechanical. Myself Anushka. I am from Begusarai. My branch is FTS. My name is Tanishka. I am from Gaya district and my branch is mechanical engineering. My name is Ananya. I am from Darbhanga district or my branch is FTS. My name is Akshat Kumar. I am from Dhanbad district. My branch is mechanical. I am Prince Kumar. My name is Roshan Kumar. I am from Araria district. Currently, I am a student of mechanical branch. Myself Sachin Kumar from Vaisali district. My branch is cyber security. Myself Ajit Kumar from Jammu district. My branch is computer science and engineering with a specialization in cyber security. My name is Dev Kumar. I am from Danapur Cant, Patna, Bihar. My branch is computer science and engineering with specialization in cyber security. Myself Aman Kumar. I am from Patna. My branch is cyber security. My name is Alok Kumar. I am from Samastipur district, Bihar. My branch is computer science and engineering with specialization in cyber security branch. Myself Sriyanshu. I am from Chhapra Saran. Myself Raja Bhardwaj. Myself Rohit Kumar. I am from Kaimur Babua. My branch is cyber security. Myself Raman Kumar. I am from Shiva district of Bihar. Myself Mrinal Kumar from Muzaffarpur district. Hello, myself Srishti Jha. I am Anshu Kumari from Muzaffarpur district. Hello everyone, myself Asi Sharma. I am from Gopalganj. Hello everyone, my name is Durga Kumari from Kamur district. I am Aarti Kumari. Myself Kajal Kumari. मैं आदर्श आनंद हूँ। Myself Rituraj. I am from Muzaffarpur, Bihar. My branch is computer science and engineering cyber security. My name is Dipanshu Pandey. My name is MD Sahil. I am from Muzaffarpur district. And my name is Satyanchal Chaudhary. I am from Muzaffarpur and my branch is cyber security. Myself Pranav Kumar. Myself Aman Kumar. Myself Ankit Anand from CSE branch and I am from Madhepura district. I am Sonia Agarwal. Myself Soni Kumari. I am from CSE branch. I am from Patna district. I am Aparna Kumari. I am from CSE branch and I belong to Sonpur. What do you want to achieve during 4th year? My dream is to achieve all the 15 officers like quality which will make me an officer in Indian Army. हमको 4 साल में मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। ऐसा अच्छा अपना सीखना है। 7.5 CGPA लाना है।
और मिड से में अच्छा नंबर आना चाहिए हर बार। 9.9 CGPA लाना है और जो खेल कूद में आगे रहना है, बस यही सब। गेट क्वालिफाई करना और जॉब जल्दी ले लेना है। 4 साल में मेरा वो ड्रीम तो हर समय बिग होना चाहिए, लाइक 9 से ऊपर 9 CGPA से ऊपर होना चाहिए, पर एटलीस्ट अभी लगता है कि पास भी हो जाए वो बहुत बड़ा हो जाए। एक बार कॉलेज टॉप करना है, फिर उसके बाद कॉलेज छोड़ देना है। गेट एग्जाम क्रैक करना है, उसके बाद फिर BPSC का प्रिपरेशन भी करना है। हम डांसिंग से और स्पोर्ट्स वगैरह से आगे जाना है। देखिए सर, हमें 4 साल में यहाँ पर एक स्टार्टअप करना है और अपने शायरी स्किल को इम्प्रूव करना है। I will improve my technical skill related to my branch. I want to improve my communications skills and confidence. एक्चुअली यहाँ अच्छे से पढ़ के गेट क्लियर करना है और डिज़ाइनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है। मुझे यहाँ से बस बीटेक का डिग्री चाहिए और कुछ नहीं। मुझे तो अपने एकेडमिक्स इम्प्रूव करना है और ऐसे दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप। मेरा मेन फोकस गेट पर है, हमको MTech या फिर PSU जाना है। हमको सिंपली डिग्री चाहिए क्योंकि हमको सिविल सर्विसेज या बिजनेस करना है। जस्ट फॉर फन हमें घूमना है, 4 साल ये घूमने में बिता देना है। पहले तो यहाँ से BTech का डिग्री लेना है मेरे को। तो मुझे यहाँ पे 4 साल में कुछ 1-2 लैंग्वेजेस सीखने हैं, मतलब फॉरेन लैंग्वेजेस जो बोला जाता है। उसके बाद मैं जॉब लेने की एक नाकाम कोशिश करूँगा इस कॉलेज से। उसके बाद क्या करूँगा, उसके बाद कोई आइडिया नहीं है क्या करूँगा। मैं 4 साल में यहाँ अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, जैसे कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है और मैं स्किल पे फोकस करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल सीख सकूँ ताकि मैं इवेंट में पार्टिसिपेट ले सकूँ, स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट ले कर सकूँ। और मुझे मास्टर्स करना है तो मैं गेट का प्रिपरेशन भी करूँगा। मेरे बकेट लिस्ट में जो टॉप पे है वो है दोस्तों के साथ नेपाल घूमना, नेपाल ट्रिप। सरकारी नौकरी लेना चाहता हूँ सर। अच्छे दोस्त बनाने हैं बस 4 साल में। IT सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं। बस एंजॉय करना है जितना कर सकते हैं। जो 4 साल है इसमें मैं जीना चाहता हूँ। ये 4 साल ये दोबारा नहीं आएगा, इसलिए मैं ये 4 साल जी के जाना चाहता हूँ। ये 4 साल एंजॉय करना और जब निकलूँ तो हाईएस्ट पैकेज के साथ निकलूँ। मैं तो लड़कियों के साथ घिर के रहना चाहता हूँ 4 साल अपने। मैं 4 साल एंजॉय करना चाहता हूँ और सेफली निकलना चाहता हूँ। यहाँ की मेमोरीज़ के साथ एंजॉय करना चाहता हूँ और मुड़ के इस टाइम को याद करने पर मुझे अच्छा लगे ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। ये 4 साल में अच्छे अच्छे दोस्त बनाना है जो बाद में भी हमारे साथ रहे और अच्छा प्लेसमेंट निकालना है इस कॉलेज से भी और अच्छा माइक्रोसॉफ्ट ये सब में जॉब लग जाए। ठीक है। I want to be happy and provide my parents everything they deserve. ब्लैक हैकिंग और दूसरे को बर्बाद करना। 4 साल में ढेर सारी मेमोरियाँ कलेक्ट करना चाहती हूँ और जब निकलूँ तो बस पैसा पीटूँ मैं। गेम अच्छे से खेलना यहाँ पे सीखना चाहती हूँ और प्रॉपर हैकिंग, किसी का फ़ोन अच्छे से हैक करके पता कर सकूँ कौन क्या कर रहा है और सबको बर्बाद। 4 साल बाद जॉब करना चाहती हूँ और हैकिंग। 4 साल में कुछ ऐसा करना है जो अच्छा लाइफ जी आगे का जो फ्यूचर में अच्छा जाए। मैं तो शादी वगैरह करके बस जाना चाहूँगा। बिना बैक लगे सेमेस्टर एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं कोई वर्ल्ड का बेस्ट गेम बनाऊँ और गेमिंग इंडस्ट्री पे राज करूँ। सर मैं तो कंफ्यूज हूँ किस पे फोकस करूँ, इतनी सारी चीज़ें हैं। एक तो सर स्पेशलाइजेशन ही है हमारा साइबर सिक्योरिटी, वो भी देख रहा है, फिर देख रहा है कि बूम कर रहा है या ये मेल वो करने का मन कर रहा है। सब एक्सप्लोर कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड है। डिग्री लेके सिर्फ जिंदा वापस निकलना है। आई वांट टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स। मुझे तो कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसमें आगे बढ़ना है। I want to improve my confidence and communication skill. अपने फील्ड में बेस्ट करना है। I want to do internship and earning money. थोड़ा स्किल गेन करना है और पॉलिटिकल कनेक्टिविटी करनी है। इन 4 सालों में अच्छे दोस्त बनाने हैं जो लाइफ टाइम साथ दे और साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना है और गेट का प्रिपरेशन 4th ईयर जाते जाते गेट निकालना है। लड़कियों की बात समझना सीखना है, यहाँ से निकलना है। Making new friends. Who is your crush? सोताक्षी मैम। आदिति मैम। आरफा मैम है कोई, हाँ जो वॉलीबॉल खेलती हैं, हाँ वही हैं। एक्ट्रेस है रश्मिका मंदाना, वही है। वांशिका मैम पसंद है। कोई नहीं है। नहीं एक्चुअली मेरा अभी तक किसी से इंटरेक्शन नहीं हुआ, नहीं तो मैंने किसी को पसंद नहीं किया अभी तक। सेम सर, किसी से इंटरेक्शन नहीं हुआ है अभी। सीनियर में हमें नाम नहीं पता हमको। वैसा तो उस नजरिए से किसी को देखे नहीं है क्रश व्रश। अभी तक तो ऐसा कोई है नहीं, बट अगर हुआ तो देखा जाएगा। नर्सरी में जो था वो याद नहीं आ रहा है और अभी ऐसा कोई मिला नहीं है। मेरे से तो 4 साल में कोई उम्मीद नहीं है। मेरा कोई नहीं है। एक थी
खुशी नाम था उसका। सर मैं जब नर्सरी में था तो मेरी एक इंग्लिश की टीचर थी, उनका नाम अंजलि था। उन्होंने मेरे को बोला था कि बड़ा होकर शादी करेगा, वही उन्हीं की तलाश में हूँ सर मैं अभी तक। मेरा क्रश वही है जो लड़की ये वीडियो देख के हंस रही होगी। और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई थ्रू इंस्टाग्राम। वैसे सर हमारे कॉलेज में बहुत सारी क्यूट लड़कियां हैं, लेकिन सर फिलहाल ऐसे कुछ है नहीं मेरा क्रश वश। मेरा कोई क्रश है भी नहीं, और बट होगा भी तो मेरे बारे में सोचने से पहले मेरे भाई के बारे में सोच लेना भाई। माई क्रश इज नॉट फ्रॉम DC, शी इज फ्रॉम आउटसाइड। आई लाइक हानिया आमिर। आई लाइक कटरीना कैफ। सेल्फ लव, डोंट लाइक अदर। जेमिनाई ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, इस वजह से मेरी क्रश बनी क्योंकि उसको उनका डांस हमको बहुत पसंद है। क्रश रखे भी तो किस पे, आजकल सबका लॉयल्टी ट्रायल वर्जन पे चल रहा है। क्रश, आई एक्चुअली हैव क्रश ऑन समवन बट आई डोंट वांट टू एक्सपोज हर नेम। ऐसा अभी कोई मेरा क्रश नहीं है, और एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थे जिनका नाम हमको याद नहीं है। मेरा आज तक कोई क्रश रहा नहीं है, अभी भी नहीं है, आगे का पता नहीं। तक्षी मैम, मैरून बैरेट और पैरा स्पेशल फोर्सेस तुम्हारे लिए ही जी रहे हैं। सर अभी तक तो नहीं है, बाद में देखा जाएगा। नहीं सर, कोई नहीं है। क्रश है, सिविल की है, बट नाम नहीं बता सकता। सर पैसा है सर मेरा क्रश, बस पैसा आ जाता है उसके बाद सर सब आ जाती है। माई क्रश नेम इज स्वीटी। सर माई क्रश नेम इज दीप्ति मैम। सर क्रश तो नहीं है, बट आर यू वाईफाई बाय एनी चांस, बिकॉज़ आई एम फीलिंग सम कनेक्शन। माई क्रश इज माई गोल। अभी तो नहीं है, जब होगी तो उसको पिकअप लाइन का नहीं, सिर्फ मुझे जरूरत पड़ेगा। फिलहाल क्रश तो कोई नहीं है, लेकिन एक पसंद थी वो छोड़कर चली गई। आई डोंट हैव अ क्रश, आई एम इन लव विथ माई चाइल्डहुड फ्रेंड। फिलहाल कोई नहीं है, एक थी जो चली गई। माई एक्स इज माई क्रश। He's very handsome, intelligent and good looking. He's from Odisha. He's very handsome and kind-hearted person. स्लिप मैम, सोना जरूरी है मैम। Any pickup line for your crush? A pickup line for my future crush. Are you a keyboard? Because you are my type. तुम हंसो या ना हंसो, बट मेरी मुस्कुराहट के कारण तुम हो। तुम मिलो या ना मिलो, ना मिलने का कोई गम नहीं, तुम पास से गुजर जाइए, मिलने से कम नहीं। पिकअप लाइन फॉर माई क्रश। इन आँखों में खो जाऊँ ना तो हर नशा इन आँखों के सामने फीका पड़ जाएगा। तुम मिल जाओ, पट जाओ, बस बात खत्म। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम मेरे हो जाओ। That's it. अटेंडेंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो तुम। मुझे तुम अच्छी लगती हो, बस इतना ही बोलना था। कि कागज़ पर एक फूल खिलाता रहता हूँ, कि कागज़ पर एक फूल खिलाता रहता हूँ, मैं अकेले में तेरी तस्वीर बनाता रहता हूँ। कि कागज़ पर एक फूल खिलाता रहता हूँ, मैं अकेले में तेरी तस्वीर बनाता रहता हूँ। कि आहिस्ता से दस्तक दे ज़िंदगी, कि आहिस्ता से दस्तक दे ज़िंदगी, मैं अकेले में तेरा ख्वाब सजाता रहता हूँ। आर यू मेड अप ऑफ कॉपर और टेलुरियम? बिकॉज यू आर माई क्यूटी। You are the reason my phone lights up even when it's not ringing. मेरी हरकतों पे तुम ऐसे गुस्सा मत दिखाया करो, मेरी हरकतों पे तुम ऐसे मत गुस्सा दिखाया करो, क्योंकि जब तुम गुस्सा होती हो तो और भी बहुत अच्छी लगती हो। Wow, great. I am not perfect, but I will try to be honest with you. फूल है गुलाब का, चमेली का मत समझना। आशिक हो आपका, आपकी सहेली का मत समझना। Are you a Google because you have everything I was searching for? सुबह की पहली किरण हो तुम, रात की शीतल ओस, पता ही नहीं चलता दिन हो या रात या पूरी जिंदगी। उसकी जिंदगी में इंटरसेक्टिंग लाइन बन के रहना चाहता था, कमबख्त दुनिया ने पैरेलल लाइन बना के छोड़ दिया है। स्वर कैसा था जब उसको छोड़ के निकली? लोग कहते हैं कि मैंने पूरी दुनिया घूम ली, पूरी दुनिया घूमने के बाद बोलते हैं कि दुनिया घूम ली, पर मैंने तो उसकी आंखों में देख के पूरी दुनिया घूम ली। आर यू अ चार्जर? आई एम डाइंग विदाउट यू। तुम्हारे बिना मेरा वाईफाई का रेंज भी नहीं है, तुम्हारी स्माइल देखकर दिन बन जाए, ये है तुम हुस्नी पड़ी। वाह 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 वाह। आंखों से दिल तक का शॉर्टकट हो तुम, मेरे जिंदगी और मेरे फोन का नोटिफिकेशन हो तुम। ऐसा तो मेरा कोई क्रश व्रश नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि ये दुनिया मिलना चाहती है मुझसे, ये दुनिया मिलना चाहती है मुझसे, पर वो नहीं इस दुनिया में मैं मिलना चाहती हूँ मुझसे। रात होगी तो चांद भी दिखाई देगा, कि रात होगी तो चांद भी दिखाई देगा, तुम्हें ख्वाबों में एक चेहरा दिखाई देगा। ये मोहब्बत है, जरा सोच के करना, एक आंसू भी गिरा तो सुनाई देगा। Are you a Wi-Fi? Because I'm feeling a connection. Even if there was no gravity, I would still fall for you. आए बबुनी, अपन नाम लिट्टी रख ले, काहे कि तोहार खातिर हम अपना हाथ आग में डाल लेबे। Is your nickname Glucose? Because you are so sweet. No pen, no paper, but you still draw my attention. धड़कनें रुक जाएंगी एक दिन, सांसें भी फिर चलेंगी नहीं। लाख सितम करो मुझ पे, जो मुंह में आए बोला करो,
अगर मेरी सलामती चाहती हो ना तो यार ये झुलफे मत खोला करो। Are you zero? Because whenever you lie under me, my love become infinity for you. Are you charger? बिना आपके एनर्जी मेरा डाउन हो जाता है और वो ऐसे मिलने वाले हैं नहीं तो कोई पिकअप लाइंस भी नहीं है। Hey, how was the heaven when you left it? आपकी मुस्कान हमारी कमजोरी है, कह न पाना हमारी मजबूरी है। क्यों नहीं समझ जाती अब हमारी खामोशियों को, क्या खामोशियों को जुबान देना जरूरी है? No pen, no paper, but you still draw my attention. I don't know why, but I smile a little extra when I see you. Do you believe in love at first sight, or should I walk by again? Are you a resistor? Because my circuit is incomplete without you. अगर उससे कभी बोल पाया तो ये बोलूँगा कि कुछ सोच कर ही खुदा ने मिलवाया होगा हमें, वरना इत्तेफाक इतने खूबसूरत नहीं होते हैं। लाइन है, आर यू अ कीबोर्ड बिकॉज यू आर जस्ट माई टाइप। इम्प्रेस करने के लिए मैं पूछूंगा उससे कि हाउ मेनी लेटर्स आर इन अल्फाबेट, तो वो बोलेगी 26 एंड मैं बोलूँगा 21 बिकॉज यू आर ए क्यूटी। कि अगर वो मेरे पास बैठा हो तो ये गा सकती हूँ कि बैठे बैठे मैं ये सोचूं तू संग बैठा हो तो मिलके बातें होंगी दो दो, उम्र यूं ही काटे हो। Kindness of any person is my crush. When I look into your eyes, I see my future. सूखे पत्तों से बिखरे थे हम, किसी ने हमें समेटा भी तो जलाने के लिए। घर मेरी चाहतों के मुताबिक जमाने की हर बात होती, कि घर मेरी चाहतों के मुताबिक जमाने की हर बात होती, तो बस मैं होता तुम होती और सारी रात बरसात होती। अब ना तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। Are you Wi-Fi? You keep connecting with me. Pickup line would be, I hope you know how to give a CPR because you just took my breath away. Who is your favorite senior? फेवरेट सीनियर्स उत्कर्ष सर है, क्योंकि ये ऑडिटोरियम में काफ़ी सपोर्ट किए, स्टार्टिंग फेज में काफ़ी सपोर्ट हेल्पफुल रहे हैं। मैम एक कोमल मैम है, सिविल की है, वो मेरा बहुत हेल्प करती है PYQs ये सब में। मेरी फेवरेट सीनियर मैम दीप्ति मैम 24th बैच की, और वो मुझे एडमिशन से लेके अभी तक हमेशा सपोर्ट करती है। एडमिशन में भी सपोर्ट की थी और पढ़ाई से लेके एग्ज़ाम का कैसा प्रिपरेशन सब कुछ में करती है। मेरे फेवरेट रेमन सर हैं सिविल ब्रांच के, जो मुझे एकेडमिक से लेके सारे चीज़ में सपोर्ट करते हैं और सभी चीज़ में मतलब हेल्प करते हैं और क्या सही क्या गलत सब बताते हैं। 24 बैच के हम सिर्फ सर से मिले हुए हैं आज तक, जिसमें कमर सर हैं और विक्रम सर हैं, ऋतिक सर हैं, सबसे मिले हुए हैं और वो अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छा नेचर है सबका सर का। हाँ, 24th बैच के सीनियर सिविल में सत्यम सर, शिवम सर और रवि सर, और CS ब्रांच में सुयश सर हमको बहुत सपोर्टिव करते हैं। My favorite senior is Kamar sir because his energy is literally unmatched. He have a will to do everything and I really like. मेरे फेवरेट सीनियर कमर सर हैं। सर मेरा कोई फेवरेट सीनियर नहीं है, क्योंकि मेरा सीनियर से ज़्यादा कुछ बात हुआ नहीं है। देवाशीष सर। विवेक मिश्रा सर। शुभम सर साइबर ब्रांच। मेरे फेवरेट सर हैं कमर सर। वरुण सर मैकेनिकल। मेरे फेवरेट सर है अनुज सर, उनका वाइब मैच करता है मेरे से। उदित सर हैं क्योंकि उनका बाल बहुत पसंद आता है हमको। सुरेश सर और सानू सर। सानू सर। हमको आफ्ताब सर पसंद है। सलोनी मैम 24th बैच में पीहू पलक। वंशिका मैम, क्योंकि उन्हीं से इंटरेक्शन ही हुआ है मेरा और किसी सीनियर से नहीं मिले अब तक। अनुज पटेल ऑन दी टॉप CS ब्रांच, हेल्पिंग नेचर है, बहुत हेल्प की है मेरी शुरू से लेकर अभी तक। अनुज सर के आगे कोई बोल सकता है क्या? अभी तक तो कोई फेवरेट रहा नहीं है क्योंकि मैंने इंटरेक्ट करा नहीं किसी से ज़्यादा। मेरे फेवरेट सीनियर हैं आफ्ताब सर, मेरा उनसे अच्छा इंटरेक्शन होता है इसलिए। माय फेवरेट सीनियर इज मोनू सर। माय फेवरेट सीनियर इज रेमन सर। मेरे लॉज में ये एक सर हैं करण सर, उनको वो हमें बहुत अच्छा लगता है सर। दीप्ति मैम इज माय फेवरेट सीनियर। श्वेताक्षी मैम। सुरभि मैम। अभी सीनियर से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, इसलिए डिसाइड करना अभी मुश्किल है। सौरभ सर मैकेनिकल, उनका बोलने का तरीका और डराने का तरीका दोनों अजीब है। अभिनव सर CS ब्रांच 2024। वैसे तो कोई सीनियर फेवरेट नहीं है, मगर जो ट्रीट दे दे वो सबसे अच्छे लगने लगता है। पुष्पांजलि मैम EEE ब्रांच। A senior without an ego is my favorite senior. गोलू सर because he inspired me. My favorite senior is गोलू सर। He was गोलू सर cause वो हर एक चीज़ में मतलब सपोर्ट करते हैं। फेवरेट सीनियर वैसे रुपेश सर हैं, क्योंकि प्री दिवाली में सर माहौल बना दिए थे। माय फेवरेट सीनियर गोलू सर, उनका बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। गोलू सर क्योंकि वो NCC किए हुए हैं और वो हमें कभी कभी आर्मी में जाने के लिए मोटिवेट करते हैं। हर्षपाल सर। आफ्ताब सर। विवेक मिश्रा सर। श्वेताक्षी मैम बिकॉज स्पोर्ट्स में ट्रेन की थी अच्छा। सेम श्वेताक्षी मैम। एनी टाइम आकांक्षा मैम। आकांक्षा मैम। श्वेताक्षी मैम। Why did you choose engineering? इंजीनियरिंग क्यों चुने? क्योंकि कुछ करने के लिए मिल नहीं रहा था, इसलिए इंजीनियरिंग चुन लिए हैं।
और ब्रांच तो अपने आप मिल गया, इसमें कोई हमारा हाथ नहीं था। घर वाले बोल रहे थे इंजीनियरिंग करना है कर लो अच्छा रहेगा, और यहाँ पे ब्रांच भी CSE मिल गया था तो ले लिया। इंजीनियरिंग पैसा कमाने के लिए करना चाह रहे हैं, अब ब्रांच गलती से मिल गया है, ट्रिपल ही लेना था। करना तो हमको BSc इन फिजिक्स था क्योंकि साइंटिस्ट बनना था, क्योंकि फिजिक्स मेरे को बहुत पसंद था, वो भी फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स बढ़िया लगता था, तो साइंटिस्ट बनना था। लेकिन उसमें समय बहुत लगता, कम से कम 7 साल 4 साल बैचलर के लिए और 3 साल कम से कम PhD करेंगे तो उसके बाद हम कर सकते थे इसमें, लेकिन पैसा का ज़रूरत था इसलिए ये कर रहे हैं। मेरा मैथ बहुत अच्छा था इसलिए मैं इंजीनियरिंग फील्ड में आया, और मेरा ब्रांच तो मेरे रैंक के हिसाब से मिला। इंजीनियरिंग शौक था और ब्रांच चॉइस। 10th तक तो मेरा बायो बहुत अच्छा था, लेकिन 11th 12th नहीं, फिर बोर्ड्स में थोड़ा मार्क्स कम आया बायो में, तो सोचा फिजिक्स केमिस्ट्री को प्रेफर करके चलूँ। तो ब्रांच मैंने खुद चूज़ किया था साइबर सिक्योरिटी, और CSE मिल रहा था पर उसको बाइकआउट करके साइबर में आने का थोड़ा था फ्यूचर देख के, तो मैंने साइबर चूज़ किया इसको लेके। इंजीनियरिंग तो शौक था लेकिन ब्रांच रैंक के अकॉर्डिंग मिला। इंजीनियरिंग सर सबसे सेफ ऑप्शन लगा, ज़्यादा लोग ताना नहीं देगा इंजीनियर, अभी बेरोजगार से अच्छा लग रहा था सुनने में। सब कुछ खोलने तोड़ने की आदत थी सर, तो मल्टी स्पेशलिस्ट तो बचपन से थे, तो सोचा कि चलो कुछ नहीं कर रहे तो इंजीनियरिंग ही कर लेते हैं। बचपन से ही शौक था इंजीनियरिंग, रिमोट कंट्रोल कार ये सब बनाना और बहुत कुछ, तो इसलिए इंजीनियरिंग फील्ड किया। और साइबर सिक्योरिटी ये तो नहीं था, पर CSE ये लेना था फाइनल है, पर रैंक के हिसाब से साइबर सिक्योरिटी मिला। इंजीनियरिंग इसलिए क्योंकि पता नहीं था क्या करना है, और ब्रांच तो इतने मार्क्स में ऐसा ही ब्रांच मिलता है। इंजीनियरिंग इसलिए क्योंकि मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक था और बायो में इंग्लिश ज़्यादा लगा तो मैंने इंजीनियरिंग लिया, और साइबर सिक्योरिटी वो तो उठा के पटक दिया गया था तो चले आए। इंजीनियरिंग इसलिए चूज़ किया क्योंकि बायो आता नहीं था, और ब्रांच में मेरे को बस CSE चाहिए था, अब CSE में साइबर मिला तो बस साइबर ले लिया, और थोड़ा फिल्म देख के सबको इंजीनियरिंग करने का मन करता है। इंजीनियरिंग इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि बिहार में BSc करने से बढ़िया है कि इंजीनियरिंग कर लो, और CSE ब्रांच इसलिए क्योंकि पैसा चाहिए और कुछ। इंजीनियरिंग इसीलिए चूज़ किया कि मेरे मोहल्ला में कोई इंजीनियर नहीं था लड़की में, इसीलिए। मैं यहाँ गलती से आई हूँ। हम गलती से JEE का फॉर्म भर दिए थे, उसके बाद गलती से काउंसलिंग भी भर दी, इसी के चलते हम यहाँ पे आ चुके हैं। कुछ नहीं सर, JEE औकात दिखा दिया तो यहाँ आ गए। मैंने सोचा जब पानी में डूबना ही है समुद्र में, तो BSc BA करके क्यों डूबे, BTech करके ही डूबते हैं, नाव भी थोड़ी महंगी लगेगी। सर हम तो सोचे चलो कुछ यूनिक करते हैं, इसलिए दरभंगा से सर इंजीनियरिंग कर ले रहे हैं सर बचपन में एक बार सर रियल स्टील मूवी देख लिया था, उसके बाद फिर रोबोट्स वगैरह का शौक हो गया तो इंजीनियरिंग ले लिया, बट फिर पढ़ाई ने औकात दिखा दिया तो फिर यहाँ एडमिशन ले लिया। मुझे तो मेरे भाई ने इंस्पायर किया है क्योंकि वो खुद सिविल इंजीनियर है। हर घर में एक इंजीनियर था ही, मेरे घर में भी एक दिन पंखा ठीक करने के लिए आया था, उसके बाद मैं सोचा मैं भी बन जाऊँ। मुझे मेरे मामा जी इंजीनियरिंग करने के लिए इंस्पायर किए थे, और हम मतलब BSc कर रहे थे तब बोले थे कि BSc से बेटर है BTech, इसीलिए। मेरे भैया ने हमको इंस्पायर किया सर, क्योंकि वो खुद एक मर्चेंट नेवी है, तो हम भी सोचे कुछ करते हैं, तो मर्चेंट नेवी का दिए तो उसमें नहीं निकला, फिर सोचे इंजीनियरिंग कर लेते हैं। सर मुझे शुरू से ही इंजीनियरिंग करना था, इसलिए सर मैं ज्वाइन किया था सर। जो रटने वाला सब्जेक्ट उसमें इंटरेस्टिंग नहीं है, लॉजिक चीज़ें अच्छा लगता है, इसलिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट इसमें लॉजिक रहता है, इसीलिए इंजीनियरिंग चूज़ किया। मेरा ड्रीम जो कि लेफ्टिनेंट बनना है इंडियन आर्मी में, और इंजीनियरिंग मुझे एक एक्स्ट्रा स्कोप देता है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग चुना। Who inspired you to choose engineering? My dad has inspired me to do engineering, and because he was an senior section officer that. मेरा भाई यही किया इंस्पायर हमको इंजीनियरिंग करने से, माय ब्रदर, क्योंकि वो भी कर रहा है इसीलिए। जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, तो साइंस इन्वेंशन की फील्ड में जो वो ज़्यादा रहे, तो उससे हम देख के इंस्पायर हो गए ताकि हम भी आगे जाके अपने इंडिया को अच्छे लेवल पे पहुंचा सके, इन्वेंशन के रूप में कुछ रिसर्च भी कर सके। My elder brother and sisters, they are engineers, so they inspire me. They are very hardworking, so I wanted to be like them. No one. My father inspired me for engineering because उनको लगता है कि BTech के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं, जो है वो इंजीनियरिंग ही कर सकता है और बाकी उसके अलावा कुछ है ही नहीं ऑप्शन। इंजीनियरिंग मेरा चॉइस ही नहीं था, तो कोई इंस्पायर नहीं किया है, सो ये फोर्सफुली था मेरे पेरेंट्स द्वारा कि इंजीनियरिंग करो। इंजीनियरिंग मेरे मामा का वजह कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो अच्छा कमा रहा है इंजीनियरिंग के। मेरे मम्मी का कहना था कि तुम मामा जी की तरह बनोगे, और मेरे दोनों मामा जी इंजीनियर्स हैं, एक तो सॉफ्टवेयर है, एक वो सिविल इंजीनियर है, तो इसीलिए हम इंजीनियरिंग चुन लिए। मेरे मामा जी से मैं इंस्पायर हुआ था क्योंकि वो मैकेनिकल इंजीनियर किए हुए हैं, BIT मास्टर से। मैं अपने मतलब मामा से भी ज़्यादा अपने मामी से इंस्पायर हुआ हूँ, क्योंकि वो हमको बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ, क्योंकि वो M.Tech किए हुए हैं। मैं अपने भैया से इंस्पायर हुआ हूँ इंजीनियर के, जो कि एक खुद ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं, और मुझे लगता है कि इंजन्स और मशीन ज़्यादा
अच्छे इंसान से। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि मुझे किसने इंस्पायर्ड किया है, बिकॉज लिटरली आई एम इंस्पायर्ड बाय मेनी वंस। क्योंकि एट द एंड मैं किसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि इंजीनियर्स कुछ भी कर सकते हैं। अगर मतलब तुमने इंजीनियरिंग कर ली तो तुम लिटरली कुछ भी कर सकते हो। तो मैं इसीलिए मतलब इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मुझे भी पता नहीं क्या करना है, बट बाद में देखा जाएगा। सब लोग बोलते हैं कि इंजीनियर बेरोजगार होते हैं, कुछ करते नहीं हैं। उनके लिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, इंजीनियर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। एक ऐसा ही फील्ड इंजीनियरिंग है कि सब फील्ड में लोग हैं इंजीनियर के। और जैसे कि वैसे इम्प्रेस तो बहुत लोग किए हैं, लेकिन फिर भी मैं किसी का नाम लेना चाहूँगा तो वो सिंदर पिचाई को देख लीजिए आप, गूगल के CEO हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई इंस्पायर नहीं किया है, जबकि मेरे को फोर्स किया गया था घर पे कि इंजीनियरिंग कर लो, तब हम कर रहे हैं। बस यही है। माई क्यूरियोसिटी हैज इंस्पायर्ड मी टू डू इंजीनियरिंग, लाइक हाउ थिंग्स वर्किंग। मुझको मेरे भैया, क्योंकि वो नहीं कर पाए तो हमको बोल दिए करने को। मेरे भी गांव के एक भैया थे, वही इंस्पायर किए थे, बोले थे मैथ अगर पढ़ना है तो उसमें अच्छे से पढ़ सकते हो, इसलिए इसको मैंने चूज़ किया था। मुझे इंजीनियरिंग करने के लिए मेरे फादर ने इंस्पायर किया। मेरे एक भैया है, वो इंस्पायर किया। मुझे इंजीनियरिंग में अपने आप को थोड़ा सा आगे देखना था और मुझे थोड़ा सा क्रिएटिव आइडिया में भी इंटरेस्ट है, तो मैं सोची थी कि इंजीनियरिंग इज़ अ राइट ऑप्शन फॉर मी। माई इंटरेस्ट टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी हेल्प्स मी टू चूज द इंजीनियरिंग एंड रीजन इज फॉर टू क्रिएट सम टेक्नोलॉजी टू सस्टेन आवर लाइफ। पापा ने इंस्पायर किया था, वो भी ज़बरदस्ती। My brother inspired me to do engineering. Myself inspired me. By watching Marvel movies such as Iron Man inspired me to do engineering. बचपन से ही हमको इलेक्ट्रिकल चीज़ों में शौक था, तो इसीलिए हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। If not engineering, then what? If I have ever wanted to do engineering, I would be a singer. My father put me in teaching line. Engineering ही करना था. I wanted to be a wing commander. Start a new business. Become a doctor. E-sport player. Army. मैथमेटिशियन। थोड़ा सा घुपचुप का ठेला खोलते हैं हम। I want to be in Air Force. If I have the another option, I would like to go in defense. Beyond engineering, I will prefer. I want to become a leader. Photography. I want to become a soldier. I want to become the leader. अगर इंजीनियरिंग नहीं करता तो हो सकता है किसी टीम से खेल रहा होता या डिफेंस की तैयारी करता। अगर मैं इंजीनियरिंग नहीं करता तो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करता। मैं अभी इंजीनियरिंग नहीं कर रहा होता तो मैं अभी फुटबॉल में बहुत आगे गया होता। अगर मैं इंजीनियरिंग नहीं करती तो मैं भी क्रिकेटर या फिर गांव में रौला काटती। अगर मैं इंजीनियरिंग नहीं करती तो डॉक्टरी करने का कोशिश करती, बट होता तो नहीं, ये मुझे पता था, इसलिए ये चूज किया था। आर्टिस्ट। मैं इंजीनियरिंग नहीं करती तो दिन भर फोन चला करके रील्स देखती और टाइम वेस्ट करती और कुछ नहीं करती। तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। मतलब कहना मैं ये चाहता हूँ ओवरऑल कि इंजीनियरिंग नहीं कर रहा होता तो मैं कुछ तो जरूर कर रहा होता। मैं अगर इंजीनियरिंग नहीं करता तो कुछ स्केचेस वगैरह घर पे बना के बैठा रहता। आई विल बी इन NDA, BA, सिविल सर्विसेज। मेरा एक्चुअली में इंटरेस्ट इंजीनियरिंग नहीं था, मेरा था डिज़ाइनिंग करना और क्लोथिंग डिज़ाइन में और क्राफ्टिंग में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो मैं चाहती थी वही करूं, निफ्ट करूं, और मम्मी पापा का था डिफेंस में। मैं इंजीनियरिंग को ही बैकअप प्लान रखा हूँ। असल में मेरा गोल सिविल सर्विस में है, बट एज अ बैकअप सेकेंड गोल मेरा इंजीनियरिंग है। अगर हम इंजीनियरिंग में नहीं आते तो हम बिजनेस में उतरते। अगर इंजीनियरिंग नहीं करते तो कॉलेज के सामने चाय का टपरी खोलते, बहुत पैसा है उसमें। अगर इंजीनियरिंग नहीं करते तो एक छोटा सा बेकरी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अगर इंजीनियरिंग नहीं करते तो कॉलेज के सामने जो ये चाय का टपरी खोलता है इसके साथ हम सहयोग करते। I always wanted to be an artist. Which habit do you want to change? कोई हैबिट चेंज करना हो तो वो तो स्क्रॉलिंग रील्स होगा, क्योंकि पूरा 24 घंटा में 4-5 घंटा तो वही चले जाता है। टोन थोड़ा सही करना है और सबसे थोड़ा मतलब बातचीत बना के रखना है। टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ाना है सर, बर्दाश्त करने की क्षमता। देखिए सर, मुझे दोस्तों का नशा हो गया, मुझे अपने दोस्त बदलने। अग्रेशन को कम करना और मेंटल टफनेस बढ़ाना। सर डेली कॉलेज आना। थोड़ा ज़्यादा बोलना सर, थोड़ा कम बोलते हैं, बोलना पड़ेगा। सर बोलने के लिए ज़्यादा और जल्दी उठने के लिए। सर हर सीरियस सिचुएशन में हंस देना। सर मेरा टाइम को लेकर, क्योंकि पहले ऐसा लगता था कि हर जगह लेट पहुंचते हैं तो वो ठीक था, लेकिन यहाँ भारी पड़ जाता है, अटेंडेंस छूट जाता है। मेरे पास बहुत सारा चीज़ है। फर्स्ट, अपनी रूममेट से कम बात करना, जब भी पढ़ाई का लेके डिस्कस होता है हम लोग का 1-2 घंटा महाभारत जैसा निकल जाता है। और सेकंड, डेली क्लास नहीं आना। रील्स। मुझे ना बोलना सीखना है। ओवरथिंकिंग इज द बैड हैबिट दैट आई वांट टू चेंज हियर। आई थिंक स्लीपिंग जो मैं चेंज करना चाहता हूँ। ओवरथिंकिंग और आलस। आई एम ऑल्सो ओवरथिंकर, सो आई वांट टू चेंज दिस हैबिट। लेजीनेस,
I also want my a change to my overthinking and my laziness. Yeah, laziness is the weakest point that I have to change from my life. हम हर लोगों से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर लेते हैं, उसके अनुसार हम खुद को चेंज करना चाहते हैं। दोस्तों के साथ ज़्यादा बकचोदी करना चेंज करना चाहते हैं। Overthinking and oversharing. My habit of procrastination. I get irritated very easily, so I want to change this. Expectation to anyone. I want to be a little introvert because I am so extrovert. I want to wake up early because I sleep very late at night, so that is a habit I want to be good at. I want to kill my overthinkness. I also want to change my overthinking problems because I am very overthinking to any matters. एग्जाम से एक रात पढ़ने की आदत. Laziness. The habit that I want to change in myself is laziness because maximum time I used to wake up very late at morning, which causes health issues. I want to change my introvert type to extrovert type. Wasting time. मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो मैं चाहूँगा उस आदत को चेंज करना। I am very emotional, so that's why I changed this habit. मेरा भाई बहुत परेशान रहता है मेरे से, उसको और परेशान करने से चेंज नहीं करना है। What is your hidden talent? हाँ, एक्चुअली हिडन टैलेंट ऐसा कुछ नहीं है, बस लड़कियों से सुनने को मिलता है कि थोड़ा मैनिपुलेट अच्छा कर लेता हो, तो और ऐसा कुछ नहीं सुना आज तक किसी से। बस मेरा हिडन टैलेंट ये है कि लोग को लगता है कि मैं वो नहीं कर सकता, बट एट दैट मोमेंट मैं करके दिखा भी देता हूँ। मेरा हिडन टैलेंट का ऐसा कुछ नहीं है, पर वही बकैती करना ज़्यादा अच्छे से आता है। हम नॉन स्टॉप बोल सकते हैं। मैं शक्ल से थोड़ी शांत दिखती हूँ, जो फर्स्ट टाइम मुझे देखेगा, लेकिन अगर मिलने के बाद उसे पता चलेगा कि मैं कहाँ तक जा सकती हूँ। ऐसा तो कोई हिडन टैलेंट नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है मैं सुनती नहीं हूँ, लेकिन मैं सब सुनती हूँ। मेरे अंदर हिडन टैलेंट ये है कि आज तक से मैंने जिससे भी लड़ाई की है, किसी से नहीं हारी हूँ, सबसे जीती हूँ। मेरे में ये टैलेंट है कि कोई मुझे पहचान ही नहीं सकता है। मेरे अंदर ये टैलेंट है कि मैं किसी भी रोते हुए इंसान को हंसा सकती हूँ, यानी कि कॉमेडी अच्छी करती हूँ। हम पे तो है ही ना सर। मेरा टैलेंट है कि हम कहीं भी सो सकते हैं आराम से। मेरा टैलेंट है कि मैं ये भी ओवरथिंक करता हूँ कि मैं क्या ओवरथिंक करने वाला हूँ। खा सकते हैं बहुत ज़्यादा, बट ऐसा लगता नहीं है कि देखने से हम खाते हैं बहुत ज़्यादा। सबसे अच्छा तो ये लगता है कि मतलब सामने वाले को लगे तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है, पर सडनली तुम उस समय उसको मतलब उसको लगेगा कि तुम्हें सब कुछ आता है एट लास्ट मोमेंट। सर, लोगों को लगता है कि हम उनको नोटिस नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबको नोटिस करके रखते हैं। मेरे में हिडन टैलेंट रोस्ट बहुत अच्छा कर देते हैं हम किसी को। टैलेंट है कि स्पोर्ट्स मल्टी स्पोर्ट्स खेल लेता हूँ, सब कुछ एक बार मतलब कुछ भी खेल सकता हूँ। अनप्रिडिक्टेबल है। What is your special talent? कृष्णा, अगर आपने उसका नाम सुना है तो ही इज़ माई फेवरेट रैपर, और इसका एक लाइन है सीधे मौत के साथ, बाप के पैसे नहीं खाता तो कैसा सवाल है, मैं कैसे कमाता, मैं लाशें भी चाहता, ये कहने में आता, पुल अप विद रीना मसाबा लाइक डैम, लेट्स सेट गो, ये है ग्रीन लाइट गैंग, करूँ मैं व्हाटएवर आई फील लाइक मैन, सड़न की सूरत मिले तीन भाई, करा सारा सीन टाइट, इनको ना नींद है चैन, मैंने करे कान के तिकाम मेरे चले नाम, गिरे बान में भी गिरे बम लगे वियतनाम, देरे जान देरे बलिदान, मैंने करे हम कत्लेआम, वो भी सरेआम, मैंने परेशान डैम, होला अमीगो, कैसे हो, ठीक हो? पोइट्री लिखना रिलेटेड टू डिज़ाइनिंग लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट एटसेट्रा। मेरे पास पढ़ाई को छोड़ के कोई टैलेंट नहीं है। हम टैलेंट का खोज में निकले हैं अभी। इंजीनियरिंग करना भी कम टैलेंटेड बात नहीं है, हमको लग रहा है ये बात। मुझे सॉन्ग गाना बहुत पसंद है, जैसे कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस है वो कि कुछ हमसे उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहती है। Have you any mimicry you want to do? नीली परी लाल परी कमरे में बंद है, मुझे नादिया पसंद है, नादिया मेरी बग्गो, मेरी सोनी सवारी, ठीक है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम फाड़ देंगे। नीतीश कुमार का एक एक्सप्रेशन है, जैसे हम सब पगला गए हैं ना जी, हम सब का माथा खराब हो गया, इस बार 10,000 रुपया दिए हैं महिला लोगों को, वोट आएगा। किरिस का गाना सुनेगा तू? किरिस का गाना सुनेगा? दिल ना दिया तो बोलो ना ककिया, ले बेटा आज दुनिया में भी अगर ले बेटा प्यार न किया तो क्या किया। Do have you any pose? Who describe your personality?
मजा कर रहा है, चल चल करते हैं। देना है। सर इसका मतलब बता दे। आई एम ऑलरेडी डेड। बचाओ, एयर इंडिया का जहाज जा रहा है ऊपर से। सर मेरा एक्सप्रेशन हम गाइस हम तीनों के साथ में लाफिंग हैं बस। A wink because it shows joy and emotion and fun. A wink. Shows the wink. Mine is always. My expression is always If you become invisible for one day, what will you do? इनविजिबल चीजों को ढूंढूंगी जो इनविजिबल रहता है। भूतों से मिलना है, भूतों की दुनिया में जाकर। पूरी दुनिया का कपड़ा चाहिए, जितने भी ब्रांडेड कपड़े हैं सब चाहिए। सीक्रेटली सीनियर सबको ऑब्जर्व करता है क्या करते हैं। दोस्त को परेशान करेंगे। गायब हो गए तो सर हम अपने मित्र सुमित जी को परेशान करेंगे। आई विल ट्राई टू अपलिफ्ट द पर कैपिटा इनकम ऑफ बिहार। मैं गायब हो जाऊंगी तो मैं बीयू के जो एग्जामिनेशन पेपर्स होंगे उसे गायब कर दूंगी। When I will get the power of invisibility, I would just sleep and do nothing. I will visit Mabbi at night. Good and bad things of your roommate? अच्छा ये लगता है कि वो फ्रेंडली है, सब कुछ है, ठीक है, वो उसमें सारी क्वालिटी अच्छी है। और बुरा ये लगता है कि वो पूरा दिन रात 24 घंटे बात करती रहती है। बस ये चीज़ें इरिटेटिंग है। सोते खाते उठते बैठते 24 घंटे इंसान कैसे बात कर सकता है, बात करती रहती है, इससे मुझे चिढ़ बसती है। My roommate is very friendly. She listens to me very carefully, but she gets angry very easily. मेरी रूममेट सारे बातें कुछ बोलती है, एक बात बोले फिर बोलती है नहीं छोड़ो, तो वो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है मुझे कि मन करता है मार दो उसको कि क्यों बोलती है ये सब बात मुझे, जब बोलना ही नहीं रहता है तो। मेरी रूममेट बहुत केयरिंग है। मेरी रूममेट सब उसका अच्छा ही है, बस थोड़ा रात में लाइट को लेकर के हम लोग में लड़ाई हो जाता है, लाइट ऑन ऑफ करने का। बाय द वे माय रूममेट इज शी। और मेरी मतलब अच्छी बात ये है कि अगर हम पढ़ते हैं, मतलब वो पढ़ती है तो उसे देखकर मैं मोटिवेट हो जाती हूँ तो मैं भी पढ़ने लगती हूँ। और डिस्ट्रैक्शन ये है कि अगर वो कुछ चला रही है, फ़ोन चला रही है, तो मैं पढ़ रही होती तो मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। My roommate is so good friend. She is so caring, but she is also so irritable. और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी करती है, हर चीज़ में छोटी छोटी बात में गुस्सा करने लगती है। मेरा रूममेट अच्छा है, बस रात को सोने टाइम खड़ाटे थोड़ा ज़्यादा लेता है जिसके कारण मैं सो नहीं पाता हूँ। मेरा जब गुड मॉर्निंग होता है तब मेरा दोस्त का गुड नाइट होता है। मेरे रूममेट तो ऐसे मतलब बहुत ही बेहतर है, थोड़ा सा अपना लेजनेस कम कर दे तो और भी बेहतरीन हो जाएंगे। अब मैं अपने रूममेट के बारे में क्या ही बताऊँ, मतलब हैं अच्छे हैं, तीनों अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। केयरिंग है, मतलब खुद का सबका ध्यान रखते हैं, हेल्प करते हैं, सबको सपोर्टिव है। बट इरिटेटिंग बात ये लगती है कि जब रात को ये लोग सोते हैं, जो खराटे लेते हैं, मन करता है तभी एक लात मार के गिरा दूँ बेड पे से। इतने ज़्यादा खराटे लेते हैं कि मतलब सो ही नहीं पाता हूँ। अदरवाइज अच्छे हैं, केयरिंग है, पढ़ाई लिखाई में सपोर्ट करते हैं, सब कुछ में सपोर्ट करते हैं, अच्छे हैं। पिछले 1 महीने से तो मेरा कोई रूममेट नहीं था, अभी मैं शिफ्ट हुआ हूँ तो वहाँ पे मेरा एक रूममेट बना है। तो अभी मेरा वहाँ पे 2 दिन हुआ है बस। तो वो जो मेरा अभी रूममेट है वो थोड़ा सा चेस बहुत खेलता है, दिन रात चेस खेलते रहता है। उससे बात करने जाओ तो एकदम चेस खेल रहे हैं, बाद में बात करते हैं, ऐसा ये चीज़ इरिटेटिंग लगता है हमको, बट बाद बाकी ठीक है। मेरा कोई रूममेट ही नहीं है क्योंकि मैं घर पे रहता हूँ। मेरा कोई रूममेट नहीं है क्योंकि मैं सिंगल रूम लेके रहता हूँ। सब कुछ तो अच्छा है इसमें, बस थोड़ा वो सफाई को लेके थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है। नहीं, मैं अपने रूममेट से बहुत खुश हूँ। हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं साथ में और स्टडी भी बहुत अच्छे से करते हैं। वियर्ड थिंग तो ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई के अलावा सब होता है रूममेट के साथ। वैसे मेरी रूममेट तो सही है, बस वो हमेशा अपना सामान रख के मेरे से पूछती है कहाँ रखा हुआ है, हमेशा। बुराई उसका कुछ नहीं है। हाँ, रात को तंग करती है, फ़ोन किसी से बात करते हैं, बार बार देखने आती है, और कुछ नहीं, बहुत अच्छी है रूममेट। मेरा रूममेट का एक आदत है कि हम जब भी घर से कुछ भी लेके आए तो अगले दिन ताला तोड़ के खा जाने का आदत है उसका। और कभी भी रात में अगर यदि वो बाहर निकला है तो कुछ ना कुछ मस्ती करके आएगा, जिसके कारण से हमें भी बुलाया जाएगा वहाँ पे। मेरे रूममेट का ये बुरा है कि वो कभी भी मतलब गेट लॉक करके कहीं नहीं जाता है, गेट लॉक नहीं रहता है उसका। और उसका अच्छा ये है जो कभी भी किसी का सामान नहीं छूता है, जो मेरा भी नहीं, वो अपने काम में मस्त रहता है। और उसका सबसे पहली बात ये है जो सीक्रेट बहुत रहता है, वो
मेरा रूममेट काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है और हर जगह मेरा साथ दिया अभी तक। उसका एक आदत है, जब जैसे कि हम कोई चीज़ भूल जाते हैं तो वो भी भूल जाता है, उसको कुछ चीज़ याद ही नहीं रहता है। जैसे मेरा है, हम भूलते हैं तो उसको कम से कम याद रहना चाहिए ना, उसको भी नहीं याद होता। और हम दोनों पूरे लॉज में घूम घूम के दूसरे को सुनाते रहते हैं कि मेरा कहाँ गया, ये गया, वो गया। तो मेरा रूममेट बेसिकली बहुत हरामी है। वो ये क्या करता है ना कि वो ओमेगल पे लड़कों से लड़कियों की आवाज़ में बात करता है। मेरा रूममेट का एक आदत ख़राब है कि वो बहुत बड़ा आलसी है। वो मतलब मना नहीं करेगा कि कोई काम करना रहेगा, बोलेगा बाद में कर देंगे, लेकिन उसको टाल देता है, लेकिन करता कभी नहीं है कुछ। मेरा कोई रूममेट नहीं है यार, घर वालों के साथ रहता हूँ। मेरी रूममेट बहुत अच्छी है, हम लोग साथ में पढ़ाई करने के साथ साथ बहुत मस्ती करते हैं। हमारी रूममेट बहुत आलसी है, पानी भी नहीं लाती टाइम पे। वैसे हम लोग साथ में अच्छे से रहते हैं, लेकिन बहुत आलसी है दोनों। Who is your favorite faculty? My favorite faculty is Rituraj sir because he is teaching very well in our class. My favorite faculty is Vishal sir because he explains very well. He is very sweet and happy, always happy. My favorite sir is Rituraj sir. Rituraj sir is my favorite faculty. Brijesh sir is my favorite faculty. My favorite faculty teacher Vishal sir. Yeah, Vishal sir is my favorite teacher. मयंक सर। मेरे फेवरेट फैकल्टी विशाल सर हैं क्योंकि वो सभी टीचरों में हैंडसम दिखते हैं। मेरे फेवरेट टीचर मयंक सर हैं। मेरे फेवरेट टीचर मयंक सर है क्योंकि वो 3 दिन में से 3 दिन क्लास लेने नहीं आते हैं। ब्रजेश सर। हरे राम सर, पता नहीं भगवान बने हमारे, इतना मीट से में इतना काम है, हम कुछ नहीं बोल सकते। अंकेश सर मैथ्स पढ़ाते हैं इस वजह से। अंकेश सर मैथ्स अच्छा पढ़ाते हैं इसलिए। अंकेश सर सबके लगभग फेवरेट हैं, थोड़ा चिल माइंडेड है, थोड़ा मस्त रिलैक्स रहते हैं क्लास में, सो अंकेश सर फेवरेट। हरे राम सर मेरे फेवरेट हैं क्योंकि वो मैं लेट से जाता हूँ फिर भी मुझे एंट्री दे देते हैं। अंकेश सर क्योंकि उनमें पेशेंस बहुत ज़्यादा है, वो जितना क्वेश्चन लेते हैं उतने टाइम में तो मुझे मारने पे आ जाऊँ मैं, किसी को जितना परेशान करे कोई तो। अंकित सर हैं क्योंकि उनके पीरियड में सब लोग डरता है, हम नहीं डरते। हम लोग पीछे बैठ के जो मन करे वो करते हैं, बाकी सब डरते हैं। सारे अच्छे हैं क्योंकि सारे ऑन टाइम रहते हैं, सब टाइम पे आ जाते हैं। सारे अच्छे हैं, पर अमन सर अच्छे थे, पर अब वो चेंज कर गए। पर हाँ, सब ठीक ही है। हमको अमन सर अच्छे लगते थे, लेकिन अमन सर अभी नहीं है, और एक हमको हरे राम सर बहुत सही लगते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे फेवरेट हरे राम सर और अंकित सर हैं। मिड सेम में बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे सर लोग। हरे राम सर और अभी हमारे फिजिक्स के मतलब अमन सर, गौरव सर और हरे राम सर। आशीष सर। हरे राम सर क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और आशीष सर क्योंकि वो इतना अच्छा पेपर सेट करते हैं कि यूनिवर्सिटी भी वहीं कॉपी पेस्ट करती है उनका क्वेश्चन। अंकेश सर भारत अमेरिका बन जाएगा, अमेरिका भारत बन जाएगा। आशीष चंचलानी सर। What is good things of DC? Darbhanga. मुझे अच्छा लगा सीनियर लोग का इंटरेक्शन, थोड़ा अच्छा मुझे लगा इस कॉलेज का। यहाँ पे एंटी रैगिंग है पहले तो, और कैंपस बहुत अच्छा है, और यहाँ का बैडमिंटन कोर्ट बहुत अच्छा है। एकेडमिक सेशन हमको यहाँ का बहुत अच्छा लगा। It is very peaceful environment and सारे फैकल्टी काफ़ी फ्रेंडली लगे। सीनियर्स अच्छे लगे। मेरा अभी भी जितने लोगों से इंटरेक्शन हुआ है सीनियर से या फिर जितने भी मेरे फेलो मेट्स हैं, सभी अच्छे हैं और यहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे यही एक अच्छी बात लगती है कि कोई आपको किसी चीज़ के लिए डिस्टर्ब नहीं करता है और सबका हेल्पिंग नेचर है। तो यहाँ का स्पोर्ट्स और लाइब्रेरी फैसिलिटी अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ आके हमको सबसे अच्छा जो लगा वो मेरा दोस्त ओजस भाई है, क्योंकि अच्छे दोस्त हैं। यहाँ आके मुझे सबसे अच्छा लगा बैडमिंटन कोर्ट और मेरे साथ खेलने वाले दोस्त। सारा चीज़ अच्छा लगा डीसी का, स्पोर्ट्स, सीनियर जूनियर इंटरेक्शंस और फैकल्टी वगैरह सारा चीज़ अच्छा लगा। एक लड़की अच्छी लगी। Mine expectations like as it is बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, अदर्स कॉलेज के कंपैरेटिव में ये मुझे थोड़ा बेटर लगा। एज पर BU मतलब BU के बिहार इंजीनियरिंग गवर्नमेंट जितने भी कॉलेज है, बाकी कॉलेज के एक्सपेक्टेशन में ये कॉलेज ठीक है, बिकॉज यहाँ पे रैगिंग थोड़ी कम है और यहाँ डिसिप्लिन थोड़ी अच्छी है। तो हाँ, स्टडी भी मतलब एकेडमिक सेशन सही चल रहा है। और हाँ, लास्ट ईयर मानते हैं कि मतलब थोड़ा सा डिले हुआ था सेशन, बस इस बार टाइम पे एग्ज़ाम सब हो रहा है। तो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, कनेक्टिविटी सही है, एकेडमिक सेशन भी सही चल रहा है। तो हाँ, थोड़ी पानी की प्रॉब्लम होती है कि कॉलेज में पानी ख़त्म हो जाता है मैक्सिमम टाइम, तो बैकअप के लिए मतलब जल्दी जनरेटर सब नहीं मिलता। जब कंप्यूटर लैब में भी जब लाइट कट जाती है तो थोड़ी दिक्कत होती है, अदरवाइज़ अच्छा है। बाकी मतलब बाकी जगह से अच्छे हैं, सीनियर्स भी ठीक हैं, अच्छे हैं। What's your excuse for bunking? Morning lecture?
आज मेरा ब्रेन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, बाद में जाता हूँ क्लास। मेरा रूममेट बीमार है इसीलिए हम नहीं आ पाएंगे। मेरा रूममेट हमको रूम में ही बंद करके चला गया, भूल गया वो हमको देखना। सोते रह गए, ब्रेकफास्ट लेट मिला इसलिए। मेरा बहाना यही रहेगा कि मेरी रूममेट का तबीयत खराब हो गया और मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। चल तबीयत ठीक नहीं था। आई वेक अप लेट, कोशिश करते हुए भी नहीं उठ पाए हम। सीनियर्स रात भर जगाए रखे थे इसलिए हम लोग सोए रह गए, जिसके कारण हम लोग लेट हो गए। ऑटो वाले कॉलेज की जगह कहीं और उतार के चले गए। ऑटो वाले ने ऑनलाइन पेमेंट नहीं लिया तो मैं नहीं आ पाया। रात में लेट से सोए थे, इस वजह से नहीं आ पाए, सुबह क्लास बंक हो गया। मैम सेम रीज़न, लेट से सोए थे। रात को सोए ही नहीं इसीलिए बंक मार दी सुबह। खेलने उलने के लिए हम बंक करते हैं, मेरा अटेंडेंस अच्छा खासा रहता है तो चलता रहता है मेरा बंक। बंक करने का रीज़न आई थिंक समय का कॉमेडी। मैं अगर क्लास में रहता हूँ, अगर मुझे नेक्स्ट पीरियड बंक करना है तो मैं एक्सक्यूज़ नहीं देता हूँ, मैं डायरेक्ट पीछे वाले गेट से निकल जाता हूँ। बंक करने का कोई रीज़न तो है नहीं वैसे, मतलब ऐसे ही बंक हो जाता है कभी भी। Why you choose DC? क्योंकि किसी और ने चूज ही नहीं किया। गॉड्स प्लान। डीसी तो चूज नहीं करना था बट गलती से आ गए। जोसा वाले ने नहीं लिया, शीशा में भी भरे उसमें भी नहीं हुआ। पापा घसीट के डाल दिए। चूज नहीं किए, मिल गया। घर से 5 मिनट का रास्ता था तो इसीलिए ले लिए यहाँ। डीसी बोले तो कर्मा वही वो जो मेरे साथ हो गया। जेई मेंस दिए थे, वहाँ पे कुछ हुआ नहीं, आईआईटी वाईआईटी का तो छोड़े थे। तब पापा बोले कि थोड़ा सा बिहार इंजीनियरिंग नाम का कोई चीज़ होता है, भर दो, भर दिए। उसमें फिर चॉइस फिलिंग हुआ, चॉइस फिलिंग दिए, बस यहाँ मिल गया तो आ गए। बिकॉज इट्स माई होम टाउन, घर के पास था इसलिए आ गया। ऑब्वियसली डीसी दरभंगा का तो किसी का ड्रीम कॉलेज तो नहीं हो सकता है, बट फिर भी और कुछ मिल नहीं रहा था तो यहीं आना पड़ा, क्योंकि बाकी जगह का कट ऑफ हाई था इसलिए यहाँ लेना पड़ा, और कोई ऑप्शन भी नहीं था। इंजीनियरिंग भी करनी थी तो आ गए सब मुँह उठा के भेड़ बकरी की तरह। मेरे घर पास में था बस इसलिए यहाँ आ गई, वरना कोई इरादा नहीं था। आई हैड नो अदर ऑप्शन देन डीसी, देन आई हैड चूज़। कह रहे थे कि हम डीसी चूज नहीं किए थे, डीसी हमको चूज किया है। हमको गया मिला था, लेकिन क्या है ना कि वो घर से बहुत पास में आता, पापा बोले कि भाग यहाँ से। मेरे को तो बस जेई परसेंटाइल में जितना परसेंटाइल आया मैंने बस भर दिया और मिल गया यहाँ पे। और एज वी नो कि डीसी टॉप 4 में आता है तो, और हमारे घर के बगल में भी था और सही भी है। बाकी और डीसी का इन्वायरमेंट काफ़ी सही लगा तो मैंने डीसी को प्रेफर किया हूँ। डीसी में रैगिंग का सीन नहीं है और यहाँ पर डिसिप्लिन फॉलो होता है, इसीलिए हम ये चुने। डीसी पहले गया मिला था हमको, अपग्रेड पे ये मिला साइबर। मुझे तो ChatGPT ने बताया था कि ये कॉलेज अच्छा है और फोटो में भी ठीक ठाक था ही तो मैंने डाल दिया। देखिए मोतिहारी ये सब जो कॉलेज है उससे अच्छा यहाँ डिसिप्लिन था, और थोड़ा वो गांव इलाका में भी नहीं था, शहर में था थोड़ा बहुत, इसलिए यही चीज़ अच्छा लगा। सर मैं तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं आया था, लेकिन जब यहाँ आके कॉलेज फैकल्टीज़ और मैंने अपने सीनियर्स को देखा तो मुझे लगा कि नहीं, ये अच्छी जगह है। मुझे ये बिहार में बहुत अच्छा कॉलेज लगा था, थोड़ा रैंक ठीक था इसका, पढ़ाई लिखाई के मामले में थोड़ा ठीक है, अटेंडेंस सर के मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट है, और मेरे घर के बगल में जब छुट्टी होता भाग जाता हूँ। मेरे को कोर ब्रांच लेना था इसीलिए मैं यहाँ आई, बाकी NIT में सब लोअर ब्रांच मिल रहा था इसीलिए। मैं देखी नहीं थी कि मैंने डीसी भी डाला है, बट जब आया तो पता चला कि डीसी मिल गई है, तो क्योंकि घर के सबसे पास यही था और CSE मिल रहा था क्योंकि ये टॉप 10 के अंदर कॉलेज था। एकेडमिक में ठीक ठाक है और बाकी और मेरे औकात के अनुसार यही मिला तो फिर लेना पड़ा। हम फर्स्ट नंबर पे इसी को चूज कर दिए थे। Expected placement? From Google 5 CR. Here last highest package 43 lakhs, so I expect approx 50 lakh. I want my package to be 50 lakhs per annum. मेरा तो क्या था कि क्लास में सर ने गलती से बोल दिया, मान लो आस्था का पैकेज लगेगा 1 करोड़ का, तो किसी ने मानना ही नहीं, बोला हो ही नहीं सकता है। तो मैं सोचती हूँ कि हाँ काम चला हो जाए, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे आगे। I build my own startup, so पैकेज का कोई सवाल नहीं है। 30,000 का महीना। ऑन कैंपस एक्सपेक्टेशन हमको बस 4 to 5 LPA है, बट ऑफ कैंपस आई थिंक 20 to 25 LPA हो सकता है। I don't have any expectations from here because I already believe in reality. 150 रुपया मिल जाए बस दिहाड़ी दिन का, ठीक रहेगा। माई एक्सपेक्टेशन इज 50 लाख पर एनम। टॉकिंग अबाउट द कॉलेज से तो ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशन है नहीं, बस खुद पे मेहनत करनी है, देखते हैं कितना तक पैकेज लगता है। बाकी तो प्रिंसिपल सर की एक बात ही अच्छी लगती है, स्काई इज द लिमिट, जहाँ तक अच्छी पैकेज लग जाए बस अपना कोशिश करूँगा अपना बेस्ट देने का। My expectation is 50+. No expectation, but I want to be limitless.